ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان۔ 2021 کسانوں کے لیے کیسا رہا، کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اور 2022 سے کیا توقعات وابستہ ہیں، حکومت سے کیا مطالبات کسان کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ فارمرز موجود ہیں، فارمرز سے جانیں گے یہاں پر ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے لیے 2021 کیسا رہا، 2022 سے ان کی کیا توقعات وابستہ ہیں، حکومت کی جانب سے جو دعوے وعدے کیے جاتے ہیں وہ کہاں تک پورے اترے، اور اسپیشلی ابھی جو گندم کی فصل ہے اس کو جو درپیش مسائل ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ابھی گندم کی فصل میں جو کھاد کے مسئلے آ رہے ہیں وہ سٹل موجود ہے یا حل ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ سٹل موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر گندم کی فصل ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। 2021 ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2021 ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਦ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਖਾਦ। ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਦ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਮਾਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ 2 ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। FMC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। آصف صاحب، مجھے بتائیے گا آپ کے لیے کیسا رہا 2021 جو فارمرز کے لیے آپ سمجھتے ہیں، کون سی چیزیں بہتر رہیں، کون سی بہتر نہیں رہیں؟ میں مناسب سمجھوں گا کہ 2021 کے بجائے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر 2021 تک میں آپ کو ایک چھوٹا سا ذائچہ اگر پیش کروں تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ حکومت نے کسی لیول پر بھی، جب بھی ان کو کسی بھی پارٹی کو حکومت ملی، یا انہوں نے کبھی کسان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اس کو کوئی سہولیات ایسی دی جائیں جس سے کسان کا معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ کسان کی معاشی حالت کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ جب سے کسان نے اپنا پاکستان نے زمینوں کو سنبھالنا شروع کیا تو ہم نے بھی اس کو ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا۔ جب زراعت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے تو کسان پہ بڑی ذمہ داری پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کو ریڑھ کی ہڈی ہی سمجھتا، اور اس میں وہ اپنے زراعت میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا، تو وہ حکومت کے سر پہ ہوتی ہے۔ جب حکومت میں اس نے نہ تو کھاد، نہ بجلی، نہ پانی، تو وہ بھی بیچارہ کیا کرے۔ البتہ جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنا کر لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا معاشی صورتحال کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ ذمہ دار کو کھاد، بجلی اور ان کو ادویات مفت تقسیم کی جائیں، اور ان کے پیچھے سہولیات کے لیے ان کو ہدایات ایسی گورنمنٹ کی طرف سے بیج کے لیے، اچھے بیج کے لیے کوئی ٹیکنیکل بندے دیے جائیں جو ان کو سمجھائیں کہ ہم ایسے ایسے کر کے آپ کاشت کریں گے تو پھر آپ کی کاشت بہتر ہوگی، اور ان کے لیے کھیت سے منڈی تک تمام سہولیات مہیا کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، 2021 ختم ہو گیا، 2022 آ گیا، کیا کہیں گے آپ، کسانوں کے لیے کیسا رہا؟ کسانوں کے لیے بہت مہنگائی کی وجہ سے بھی کسان بہت ڈسٹرب ہے۔ صحیح ٹائم پہ کھاد سپرے نہیں ملتی، پانی وقت پہ نہیں ملتا، پانی بہت کم ہے، ذمہ دار کو پانی کی بہت مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ذمہ دار بہت پیسا ہوا ہے، جس کو صحیح معاوضہ بھی نہیں ملتا اور صحیح طریقے سے فصل بھی نہیں اپنی بنا سکتا، بیج سکتا۔ اس لیے ذمہ دار کو نا بہت 21 سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی یہ پرابلم آ رہا ہے، اور سپرے کھادیں جڑیاں صحیح نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ٹائم پہ نہیں ملتی، یہ اگر ملتی ہیں تو وہ صحیح نہیں ملتی، یہ جعلی بہت زیادہ کھادیں سپرے آ رہی ہیں۔ کتنا منافع کمایا اس سال؟ منافع تو نہیں، پورا ہی نہیں ہوتا ذمہ دار کا خرچہ اگر پورا ہو تو منڈی میں آتا، سارا منڈی میں آ کے ذمہ دار کو صحیح چیز نہیں ملتی۔ اگر منافع اوپر کے لوگ اٹھاتے ہیں، ذمہ دار کو تو کچھ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ ذمہ دار بھی اپنے آپ کو ایڈوانس نہیں کر پا رہا۔ یہ بھی بات ہے، یہ محکمہ زراعت کی ذمہ داری ہے نا، وہ معلومات دے، محکمہ ذمہ دار کو جا کے یہ چیز بیچے، یہ فصل لگائیں۔ محکمہ زراعت
ऐसी मालूमात नहीं दे रहा ज़िम्मेदार को मालूमात नहीं है ऐसे। यासफ साहब, छोटा ज़िम्मेदार अपने आप को कैसे एडवांस करे जबकि उसके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो अपने ट्रैक्टर खरीद सके, वो अपने एस्केलेटर ले सके, वो कोई बलडोज़र ले सके, वो ट्रैक्टर ट्राली ले सके। उसके पास इतना माल ही नहीं होता, वो कब कैसे वो अपने आप को एडवांस कर लेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वाफिर मकदार में उनको कर्जा दे, जिससे वो अपनी ये बुनियादी सहूलियात जो हैं वो हासिल करके उनके साथ वो अपनी ज़री ज़मीन को आबाद कर सके। जी अकबर गुजर साहब, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, सब्सिडाइज चीज़ें नहीं मिल रही किसानों को, इस वजह से मसाइल हैं या जेन्युइन मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CD41 का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे मसला समझ कर और 2021 से 2022 में जाने के लिए हमारी जो मुश्किलात थी उसके बारे में हमारे साथ डिस्कशन की, तो आपका शुक्रिया। असल में जो मसला है ना ज़राअत का, ये एक हमारा बेसिक मसला भी है और हमारी जो मुआशी तरक्की है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो मईशत है, अगर हम 2021 की बात की जाए तो इसमें जो ज़राअत है इसको रेट्स तो इसके बेहतर हुए हैं, हर फसल के जो रेट्स थे वो बेहतर हुए, लेकिन उसकी जो बेसिक उसकी जो अखराजात हैं, खर्चे हैं, उसमें खाद आती है उसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। बिजली थी जिसके ज़रिए हम ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो ज़िम्मेदार के पहुंच से बाहर जा रहा है। बाकी रहेगा डीज़ल भी इस साल तो आपको पता ही है कि ये वो डॉलर का नाम लेते हैं, लेकिन डॉलर बेशक आगे बड़ा भी होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि हमें सब ज़िम्मेदारों को उसके लिए ख़ास कोई सब्सिडी दी जाती। इसलिए हमारे जो ना अगर कोई रेट हमने ज़्यादा लिए भी हैं मंडी से, तो वो हमारी बेसिक जो अखराजात है उनकी नज़र हो गए हैं। दूसरा, हमारी फसल माशाल्लाह अच्छी हुई है, जिसमें कमाद की फसल है वो अच्छी थी, तो उस एक तो हमें खाद का बहुत बड़ा मसला आ रहा है पूरे साल का ही। अच्छा चोर साहब, समझा जाता है कि इसी वजूहात से किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। नहीं, ये बात नहीं है। किसान का बच्चा किसान बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो गवर्नमेंट उसको अवेल नहीं कर रही, इसलिए उसको अपनी ज़राअत से हट कर कोई दूसरा नया सोर्स वो पैदा करता है कि जिससे उसका घर चल सके। क्यों हमारी वो ज़मीनें जो हैं वो छोटे ज़मींदार के पास इतनी नहीं है कि वो उसके घर को चला सके या आजकल के ज़रूरियात के मुताबिक उसकी इनकम को बेहतर कर सके। 2021 में कितना मुनाफा कमाया? 21 के मुनाफे की बात जब करते हैं तो वो मुनाफा तो हमें देखने में काफ़ी आता है, लेकिन जब हमें एक खाद जो हमें 1200 या 1300 में मिलती थी, अब अगर वो यूरिया खाद का एक बोरा में 2500 में मिलेगा तो वो हमें बताएं कि हमारा मुनाफा हम कैसे उसको मेंटेन रख सकेंगे या कहेंगे कि हमें ये मुनाफा ऐसे हुआ। नए साल से क्या उम्मीद है? नया साल भी अगर यही हुकूमत रही तो इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा, तो इससे तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और ज़िम्मेदारों के हक़ में ये अच्छी कोई बात कर जाए। जी कल्लू साहब की कहोगे किसाना दे वाले? रहीम, आपके मीडिया की विसालत से मैं गवर्नमेंट को यही इल्तिजा करूँगा कि खुदारा रहम करो, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ज़िम्मेदार, इन ज़िम्मेदारों को वो सहूलतें दो जो आप VIP क्लास को दे रहे हो। जो मिनिस्टर हैं वो तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए में पर मंथ पड़ता है। की सहूलतां चाहते हो? ਅਸੀਂ सहूलतां ये चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि कम से कम ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸਾਲਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਨਵੇ ਕਰਨ कि बीज इस्तेमाल करना है, इस टाइम तो सब फसल काश्त करनी है। चूँकि साडा छोटा ज़िमीदार है, वो एक दो जानवर रख के गोश्त भी पैदा कर रहा है, जानवर रख के दुध भी दे रहा है। मज़े की बात यह आ कि उन्होंने जदों कोई मुश्किल आती है ना उन्होंने कोई वारू बनता है, पंजाबी च जिद्दां आंदे ना उन्होंने कोई साई बनता है, ना खसम बनता है। गौरमेंट को चाहिए कि उन्होंने हर सहूलत उन्होंने दहलीज से पहुँचाउण। चूँकि ये बार ये सवाल किया जाता है कि ज़िमीदार का पुत्र ज़िमीदार क्यों नहीं बनता। हालांकि ज़िमीदार का पुत्र ज़िमीदार बनना चाहता है, वो इस वजह तो नहीं बन रहा कि अगर 3 बच्चे आ, वो 10 एकड़ सीगे तो
ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 9-9 3-3 ਏਕੜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੋਏ ਸੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਧ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਪੀੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕਸੂਦ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਦਾ, 4 ਏਕੜ ਦਾ, 3 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਦ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬੇਵਕਤ ਜਾ ਕੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CPR ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਸਾਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ। जो इस हवाले से यहाँ पर फार्मर्स की जो भी रिजर्वेशन थी आप तक पहुँचाई। नासरीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मकामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। मकामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक रुकन सूबाई असम्बली मियाँ ताहिर जमील मौजूद है, जो अपनी काविश करते रहते हैं, अपनी कोशिशें करते रहते हैं, पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन अब ये हुकूमत का काम है कि इस हवाले से उन करारदादों को, उनके जो वक्फ़ा सवालात में किए जाने वाले अहम सवालात हैं, उनकी रोशनी में जो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ तो यकीनन बेहतरी आ सके। तो इसी हवाले से शुरू करते हैं। ये सब क्या कहेंगे, 2021 गुजर गया, 2022 आ गया, ज़राअत के हवाले से स्पेसिफिक ये साल कैसा रहा? देखें, एग्रीकल्चर के हवाले से ये साल जो है, इसकी कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन रही है। आप देखें कि यूरिया खाद जो है उसके जो रेट हैं वो आसमानों से बात कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी दूसरी खादें जो फसलों को डाली जाती हैं उनके रेट जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। एग्रीकल्चर क्योंकि हमारे पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर पंजाब मजबूत नहीं होगा, अगर पंजाब मजबूत नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। मेरे ख़्याल से हुकूमत को टॉप प्रायोरिटी पे एग्रीकल्चर को रखना चाहिए था। अभी जब पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर पर बहस हुई, उसके अंदर मैंने अपनी तहरीक भी पेश की थी, उसमें मैंने वक्फ़ा सवालात में भी ये बहस की गई थी कि देखें, फैसलाबाद में एक अयूब रिसर्च अदारा है, उसके हज़ारों मुलाजमीन हैं। उसको पिछले दिनों जो है वो एक इमरान ख़ान के जो राइट लेफ़्ट हैं वो उसको तबाह बर्बाद करना चाह रहे थे, उसको प्राइवेट करने जा रहे थे। उस पर आप मीडिया के कैमरों ने भी शोर मचाया, हमने भी असम्बली के अंदर अपना किरदार अदा किया, चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, वज़ीर आज़म को भी लेटर लिखा कि खुदा के लिए एक ही अदारा है जो हमारे पंजाब के किसानों को सपोर्ट करता है, और जो नई वैरायटीज़ आती हैं उसमें वैरायटियाँ लाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। तो आप उस अदारे को भी बेचने जा रहे हैं, तो ये मेरे ख़्याल में ये मुनासिब बात नहीं थी। आप देखें कि जो परफॉर्मेंस पंजाब जो हमारे मिनिस्टर हैं हुसैन गर्देज़ी साहब, उन्होंने जब असम्बली के अंदर जवाब दिया तो उनके जवाब को सुनकर मुझे खुदा की कसम हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जवाब जो था वो हकीकत के बरक्स था। हकीकत बात इस हुकूमत को करना बड़ा नागुज़ीर गुज़रता है। मेरे ख़्याल से इस हुकूमत को जो इश्यूज़ हैं या तो वो नज़र नहीं आते हैं, अगर नज़र आते हैं तो वो फिर उस पर तवज्जो नहीं दे पाते, और मेरे ख़्याल से हमें इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें कि जो नई वैरायटियाँ पैदा करनी थी, लोगों ने सड़कों पर एहतजाज करते हुए अपना टाइम ज़ाया कर दिया। अदारों ने जिन्होंने नई वैरायटियाँ बनानी थी उनके लोगों को परेशान कर दिया। इसी तरह जो बजट था, बजट का कट लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि
हमारे पंजाब के अंदर अगर किसान मजबूत नहीं होगा तो मुझे कोई कुलिया आप दिखा दें कि पंजाब कैसे मजबूत होगा। अच्छा मियां साहब, इसमें मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ पर कैंपेन की जाती हैं गांव देहात में जाकर, शहरी आबादी भी अब तो जो नौजवान पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता कि ज़राअत इस तरीके से बेहतर बनाई जाए। देखिए, हमारे ये खुशकिस्मती है फैसलाबाद के शहरियों की कि हमारे फैसलाबाद के अंदर एक तो अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरा हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहाँ पर हमें हमारे बच्चों को इनको गाइड करना चाहिए, हुकूमत को एक कैंपेन चलानी चाहिए, यहाँ पर किसानों को गाइड किया जाए, यहाँ पर हमारे जो तालिब इल्म जो एग्रीकल्चर के हवाले से मुंसलिक हैं उनको गाइड किया जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो काम करने से कासिर है। मैं तो पहले भी आपके कैमरों के सामने ये कहता रहता हूँ कि ये हुकूमत नाअहल है, ये कोई काम नहीं कर सकती। आप देखें कि असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी कि यूरिया खाद तो लोगों को मिल रही है। जब आप देखें कि आप मेरे साथ चलें, कैमरे के साथ चलें, आपको पता लगे कि यूरिया खाद के लिए कितनी कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये कौन सा मुल्क है, कौन से मुल्क में ऐसे किया जाता है कि आप जो आपकी गंदम की फसल है वो बम्पर क्रॉप हुई, बकौल आपके वो उसकी शॉर्टेज आ गई, इसी तरह शुगर की शॉर्टेज आ गई। मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें कंट्रोल किसने करनी है? ये कंट्रोल जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने करनी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल नाअहली की वजह से और नाकिस पॉलिसियों की वजह से जो है वो आवाम में अपना एतमाद खो चुका है। और मेरी ये गुजारिश होगी अरबाब इख्तियार से कि खुदा के लिए पंजाब की आवाम पर रहम करें। और आप देखें कि हमें जो सबसे बड़ा जो अब खदशा नज़र आने लग गया है, जो हमारे फूड एक्सपर्ट्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि फ़ूड के हवाले से हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि अरबों रुपए की इंपोर्ट जो है वो की जा रही है। अरबों रुपए का जो दालें हैं, जो हमारी खाने पीने की दूसरी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सी पॉलिसी है? हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, हमें यहाँ पर अपनी चीज़ें उगाकर अपनी आवाम को खिलानी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा फूड का बहरान आएगा अगर हम इसी तरह आगे चलते रहे, तो आप देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, कुछ 10 अरब डॉलर के करीब चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं पाकिस्तान में, एक ज़राई मुल्क भी कहलाते हैं हम, तो ये बड़ा तजाद नहीं नज़र आता कि एक ज़राई मुल्क होते हुए भी इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ती है? क्या हम फार्मर्स को रिलीफ नहीं दे पा रहे? देखिए, अगर हम फार्मर को रिलीफ दे पाते तो फिर हमारा फार्मर जो है वो खुशहाल होता। हमारा फार्मर ये ज़िला कौंसल चौक में आकर एहतजाज ना करता। हमारा फार्मर अगर खुशहाल होगा तो फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा। मेरे ख़्याल से जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं वो फार्मर दुश्मन पॉलिसियां हैं। आप देखें कि गंदम में 1300 रुपये मन जो उठाई गई फार्मर से, और वहाँ पर फिर जाकर आप दूसरी मार्केट में देखें कि वहाँ पर फिर 2000 सेल होती रही, 2500 तक रेट गया। तो मुझे ये बताएं कि अगर यही फ़ायदा जो है अगर हम फार्मर को देते तो फार्मर मजबूत हो जाता, वो अगली बार वो इससे भी ज़्यादा फसलें उगाने की कोशिश करता। लेकिन असल इशू ये है कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ जो हैं वो अवाम दुश्मन हैं। वो अगर किसान दोस्त पॉलिसियाँ होती तो किसान जो हैं वो हुकूमत के गुण गा रहे होते, किसान एहतजाज में कभी भी ना जाते। असल में बात ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर हैं जमशेद चीमा साहब जो हैं वो अपनी टीम के साथ मिलकर अदारों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, अपना माली फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। जबकि अगर आप किसी अदारे को कमज़ोर करेंगे तो फिर वो अदारा बैठ जाएगा। हमें किसानों को, एग्रीकल्चर को, हर चीज़ को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हम उनको मजबूत कर लेंगे तो पाकिस्तान खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जिस हवाले से लीगी MP मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, जो इन्होंने काविशें की, जो तजावीज़ दी और जो किसानों के मसाइल है उसके हवाले से बता रहे थे कि किस तरह उनको पीसा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सरवर कुरैशी मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसानों के मुतालिक
एग्रीकल्चर के मुतालिक ज़राअत पॉलिसी क्या रही है, किस साल तक इम्प्लीमेंट हुआ और स्पेशली 2021 का जो साल है वो ज़राअत के हवाले से कैसा रहा, बेहतर रहा, भारी रहा, तवक्कुआत कितनी पूरी हुई, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने टाइम दिया। 2021 में क्या देखते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ओवरऑल ज़राअत पर कैसा साल रहा, बेहतर रहा? जो 2020 में पाकिस्तान में और दुनिया भर में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ख़राबी पैदा हुई, लेकिन अभी जो 2021 है वो इस लिहाज से तालीमी अदारों के लिए बहुत अच्छा साल था कि इसमें हमारी तालीमी एक्टिविटी जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी वो स्टार्ट हो गई और इससे जो हमारे जो रिसर्च है एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कि हमारा मेन एजेंडा है उसमें हम दोबारा अपना काम जो है वो पूरी तवानाई के साथ करने के लिए शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में 2021 जो है वो एक अच्छा साल गुज़रा, लेकिन 2021 में एक मसला जो हमें आया था वो ये था कि हमें कुछ बहुत सारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसके ऊपर तकरीबन $10 बिलियन पाकिस्तान को ख़र्च करना पड़ा और उसमें से सिर्फ एक बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ गंदम की इंपोर्ट पे ख़र्च हुआ। तो वज़ीर-ए-आज़म फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर ये बात तय हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वीट प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट कैंपेन चलाई जाए, जिसमें कि इस काम के लिए कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो गंदम पैदा हो। लेकिन चूँकि 10% शॉर्टेज थी तो पहले मरहले में ये कोशिश की गई कि 10% जो है ना वीट प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जाएं। तो ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर ज़राअत पंजाब जनाब गर्देज़ी साहब के ने और हमारे हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये एक स्कीम बनाई कि ये कैंपेन लॉन्च की जाए और हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने कोई 22,000 तलबा और तमाम फैकल्टी मेंबर्स को पंजाब के 5 जो डिवीज़न्स हैं उनमें भेजा कि वो जो है काश्तकारों के, फार्मर्स के, ब्रीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें और उनके साथ मिल के उन्हें जो है ना बेहतरीन जो पॉलिसी इस वक्त पॉसिबल है वो दी जाए, कन्वे की जाए कि वो उस तरह गंदम की काश्त करें। तो इस सिलसिले में हमने 15 दिन की एक कैंपेन चलाई, जिसमें 5 दिन तो हम इन हाउस ट्रेनिंग करते रहे अपने स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की, और 10 दिन हमने 5 डिवीज़नों के अंदर जो है ऑन फॉर्म जो है ना एक्टिविटीज़ की और उनके हमने वो रोड शोज़ किए, उनके ट्रेनिंग के फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए सेमिनार्स का इनकाद किया उनके गाँव में, उनकी जगह पे जाके, और बाद में जो है वीट सोइंग के लिए उनके साथ अमदाद भी की, हेल्प उन्हें की और उनको जो है ना उनके जिधर कोई डेफिशिएंसीज थी उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको सजेशंस दी, रिकमेंडेशंस दी। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त उम्मीद है कि पंजाब में जो 10% हमारा टारगेट था वो आसानी से अचीव हो जाएगा। सर ये तो मैं देखता रहा हूँ, बड़ी अच्छी कैंपेन थी आपकी माशाल्लाह, उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, दूसरी तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन मुझे ये बताइए कि $10 बिलियन की जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें ऑयल सीड्स भी आ जाती हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा हुकूमती फ़ोकस क्यों नहीं हमें नज़र आता? नहीं, पाकिस्तान का जो है कि भाई सभी चीज़ों पे फ़ोकस तो है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जैसे हम यानी फूड आइटम्स जो है ना $10 बिलियन के इंपोर्ट किए गए, तो उसमें ये है कि दालें भी जो इंपोर्ट की गई हैं, आपने जैसे बताया कि भाई फूड ऑयल्स हैं, और जो अभी यानी मतलब कई जो ये जैसे वीट है,
تو یہ ضروری ہے کہ بھئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز کی جائے، نئے سیڈز آئیں، اور نئی جو ہے وہ جو دنیا کے اندر جدید علم آیا ہے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ آپ کی ایگریکلچر سائنٹسٹ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ریسرچ کتنی ہو رہی ہے کہ اس کو انہانس پیداوار کو بھی کیا جائے اور یہ ریزسٹنس بھی ہو، کیونکہ یہاں پر جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جو یہاں پر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو اس پہ مجھے بتائیے گا کتنا زیادہ ورک آپ کی یونیورسٹی کر رہی ہے؟ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ بہت سارے ایشوز پہ کام کر رہی ہے اور بہت ساری ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ ہم نے سیڈ میجر جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، سیڈز کے مختلف ورائٹیاں جو ہے وہ پیدا جو ہے ڈیولپ کریں۔ تو اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ ایک ریسنٹ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سویا بین جو ہے وہ اس کے پاکستان پیورلی وہ جو امپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا بہت زیادہ جو استعمال ہے وہ پولٹری فیڈ میں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی وقت سویا بین جو ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ کٹ جائے تو پاکستان کی جو پولٹری انڈسٹری ہے وہ آلموسٹ کولیپس ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی یونیورسٹی آف ایگریکلچر جو ہے وہ اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سویا بین جو ہے اس کی نئی یعنی ورائٹی ہو، اور اس کے اندر ایک بڑی بات یہ ہے کہ انٹر کراپنگ، یعنی کہ 2 کراپس جو ہے نا وہ ایک ساتھ لگائی جائیں۔ یہ جو ہے 60-70 دن کی فصل ہے جو سویا بین، تو اس کو اگر اس کے ساتھ ہم لگائیں تو آسانی کے ساتھ وہ جو ہے نا ہم اگا سکتے ہیں۔ تو جو ہمارا فارمر ہے نا وہ ٹریڈیشنل ایگریکلچر میں فی الحال زیادہ یقین رکھتا ہے۔ اس کو یہ بات مائل کرنا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا ایک جو پہلے سے ہو رہی ہے فصل کاشت اس کو چھوڑ کے تو آپ سویا بین لگائیں، اس کے لیے ایک جو ہے نا کوشش کی ضرورت ہے جو کہ ہم اپنے لیول پہ کر بھی رہے ہیں۔ اور اباوال یہ ہے کہ یہ جو سویا بین ہے اس کا مختلف جگہوں پہ کاشت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی مختلف جو ہے پریکٹسز اپلائی کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ اس کے لیے بھی فارمر کی جو ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ مختلف ایریاز میں جو ان کو بتایا جائے کہ کب وہاں موسم ہے اور کب ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اس کی کاشت کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم نے اکثر دیکھا کہ تجربات کروا لیے جاتے ہیں، ورک شاپس بھی ہو جاتی ہیں، بڑی محدود رہتی ہیں اور جو گراس روٹ لیول پر چیزیں اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کو اسپیشلی جو انڈسٹری بنانے کے لیے تاکہ اس کو سائنسی بنیادوں پر میکنائز کیا جائے، پروفٹ کے حصول کے لیے ایگریکلچر کی جائے، اس کے لیے کیا اقدامات ہو؟ جو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا ایک ویک لنک ہے پاکستان میں، ابھی تک پاکستان کا بزنس مین جو ہے وہ نہ تو کنونسڈ ہے نہ ہی موٹیویٹڈ ہے کہ بھئی اس کو ایجوکیشن جو ادارے ہیں، ایجوکیشنل ادارے، یونیورسٹیز وغیرہ، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہیے اور پرٹیکولرلی اس ریسرچ کے لیے انویسٹ کرنا چاہیے۔ ایک تیسری جو ابھی ہم سمجھے ہیں بات، وہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ایکیڈیمیا ہے اور انڈسٹری کے لنک کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا لنک بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ٹرائکا بنے گی نا تو اس کے ساتھ زیادہ جو ہے نا پروڈکٹیو ایفرٹ ہو سکے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بہت زیادہ میڈیا کو پرٹیکولرلی اور ہمیں بھی ایک ایسے فورمز یا ہونے چاہیے جدھر ہم جو ہیں بزنس مین اور جو انڈسٹری ہے اس کو اس بات پہ قائل کر سکیں کہ وہ پاکستان کے اندر
ریسرچ کو پروموٹ کرنے میں انویسٹمنٹ کریں. اور یہ بہت ساری جو ہوتی ہیں نا ٹیکنالوجیز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ایز سچ نہیں اپلائی ہو سکتی پاکستان میں. ان کی جو ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ان کو ماڈیفائی کیا جائے اکارڈنگ ٹو آور اون انوائرنمنٹل کنڈیشنز, تو اس کے لیے بھی ریسرچ ضروری ہے. اور اس کے لیے جب تک ہمارا بزنس مین جو ہے وہ اس انویسٹ نہیں کرے گا, میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے یہ اکیلے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے یعنی نا بڑے لیول پہ اس ایکٹیویٹی کو میں انویسٹمنٹ کرے اور پروموٹ کرے. اور دوسرا یہ بات کہ ایک ایسا فورم بھی ظاہر ہے اسٹرانگلی اویلیبل ہونا چاہیے جدھر انڈسٹری کے جو مسائل ہیں وہ اکیڈیمیا تک پہنچیں اور اکیڈیمیا کے جو سلوشنز ہیں وہ انڈسٹری تک پہنچیں. تو ہماری جو ایکسٹینشن سروسز ہیں, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کے لیے زیادہ تندہی سے کام کرے اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا افیکٹولی ایفیشنسی کے ساتھ جب تک سامنے نہیں آئیں گے یہ گیپ جو ہے وہ موجود رہے گا. جس حوالے سے ہمارے ساتھ پرو وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی ڈاکٹر انس سرور قریشی موجود تھے, جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کمپین چلائی جا رہی ہیں ویٹ کے حوالے سے, سویابین کے حوالے سے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر پروگریسو فارمرز یہاں پر ایکسپرٹس کی رائے لے کر چلتے ہیں, اگر انڈسٹریلسٹ اس میں انٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو انڈسٹری بنایا جا سکتا ہے. سب کچھ حکومت کے اینڈ پر چھوڑنا بھی بہتر نہیں ہوتا. اب تمام فارمرز کو بھی اپنا جو رویہ وہ بدلنا ہوگا اور انڈسٹری کو بھی اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا. ناظرین, کوشش کی تمام اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.